السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطاب محترم پروفیسر عبد الرزاق ساجد حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب آف فیصل آباد نے الکریمیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام 27 رمضان المبارک کو 11ویں سالانہ تعلیم و تزکیہ کورس میں کیا۔ اس کا عنوان ہے موبائل، انٹرنیٹ اور میڈیا کے معاشرے پر اثرات۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، ہماری آج کی اس ملاقات کا عنوان موبائل، انٹرنیٹ اور میڈیا کے معاشرتی اثرات اپنے اندر 5 چیزوں کو لے کر کے ہمارے سامنے ہے۔ موبائل وہ چیز کہ جس کو بچہ جانتا ہے، انٹرنیٹ یہ وہ جال اور شبکہ ہے کہ جس کو گلی گلی میں نیٹ کیفے کے نام پر بچھا دیا گیا ہے، اور کافی سارے افراد ایسے بھی ہیں جو اس کے بارے میں شاید ابھی معلومات نہیں رکھتے۔ میڈیا اس لفظ سے آج شاید دیہات بھی ناواقف نہیں ہیں۔ ان 3 چیزوں نے، پہلی 2 جو کہ میڈیا ہی کا حصہ ہیں، انہوں نے ہمارے انسانی معاشروں پر اپنے کیا اثرات چھوڑے ہیں، آج اس حوالے سے ہماری انشاءاللہ العزیز مالک کی توفیق سے گفتگو ہے۔ دینی حلقوں میں جب یہ عنوان دیکھا سنا اور پڑھا جاتا ہے تو عموماً بدیہی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ہی بولا جائے گا، لیکن جب بات معاشرے کی ہے اور بات اثرات کی ہے، اثرات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اثرات برے بھی ہو سکتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہے، کن چیزوں سے بنتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس کی بھی ہمیں خبر ہونی چاہیے تاکہ ہم موبائل، انٹرنیٹ اور میڈیا اس کے حوالے سے دیکھ سکیں اور پرکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اس موضوع کو مالک کی توفیق کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ اثرات دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو، یا تو وہ اپنا پازیٹو اثر رکھتی ہے یا نیگیٹو رکھتی ہے۔ اثر مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، اس کے فوائد ہوں گے یا اس کے نقصانات ہوں گے۔ فائدے کے پہلو میں نقصان پڑا ہوتا ہے اور نقصان کے پہلو میں بسا اوقات فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ یہ دنیا والے آپ سے شراب اور جوئے کے حوالے سے پوچھتے ہیں، آپ ان کو کہیے کہ ان میں فائدے بھی بڑے ہیں، ان میں نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات بڑے ہیں، فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن
जब ओवरऑल देखा जाए, मजमूई तौर पे देखा जाए और इंसानी मुआशरों पे उसके असरात को चेक किया जाए, तो पता ये चलता है कि इनका नुकसान इनके फायदे पर गालिब है। लिहाजा इनको आखिरकार आगे बढ़ के जाकर के मरहला वाइज इंसानी जबिल्लत में जो सिरायत कर चुके थे, इंसानी मुआशरे पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दे दिया, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जिसमें उस मुआशरे का फायदा था। और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 208 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान और उसके मुआशरे को यह बात समझाई है कि जिन्होंने हमारे साथ राबता करके हमें मान के अपनी जिंदगी का आगाज नहीं किया, बात उनसे नहीं है। हम उनसे बात कर रहे हैं कि जो ईमानियात की बुनियाद रखते हैं। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, ईमान का तकाजा यह है कि बंदा इस्लामियात में प्रैक्टिकली पूरे का पूरा आ जाए। ईमानियात, अल्लाह को मान के बढ़ना, मलाइका पे ईमान ला के आगे चलना, अल्लाह के उतारे हुए निसाब को लेके, और इसी तरह वक़्त के पैगंबर की जनाब को लेके, आखिरत का डर लेकर के, तकदीर पे ईमान लेकर के, ये ईमानियात की बेस जब आएगी तो उसके बाद जिस चीज को आपने लेना है, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे का पूरा ए से लेके जी तलक, अलिफ से लेके या तलक, और इब्तिदा से इंतहा तलक, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तलक आपको इस्लाम में पूरी की पूरी एंट्री देनी होगी। मर्जी का नहीं, जहां दिल चाहा दाखिल हो गए, जहां। और सिर्फ इस्लाम में दाखिल होना ही काफी नहीं, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, ईमानियात हूं फिर साथ में इस्लामियात का प्रैक्टिकल हो। ये लोग शैतानी रास्तों पर चलें, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता है। याद रहे क्यों नहीं, हम क्यों रोक रहे हैं, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, बड़ा वाज़ेह दुश्मन, उसमें अदावत है। भाइयों याद रहे, ये दुनिया मुकाबले की दुनिया है। यहां पहले दिन से मुकाबला चला आ रहा है। हजरत इंसान जब इस मुआशरे का पहला फर्द अल्लाह ताला ने उसको दुनिया की नुमाइश में पेश किया, तो जहां उसको मानने वाले ठहरे वहां उसके मुनकिर और इनकारी भी मौजूद। और उसी पहली घड़ी और पहले लम्हे में ये मुकाबला जारी हुआ, तनाव हुआ, ऐलान कर दिया गया, चैलेंज पेश कर दिया गया। शैतान चैलेंज कर रहा है, रहमान उसे कबूल कर रहे हैं। शैतान का चैलेंज ये है कि ये बनाया हुआ मुआशरा मेरे हाथों में होगा, कंट्रोल मेरा होगा, ये तेरे नज़्मो ज़ब्त को तोड़ेंगे, कवायद और कवानीन को पामाल करेंगे, तेरे होकर के तेरे नहीं रहेंगे, आसमान की छत तेरी होगी लेकिन उनके ऊपर साया मेरा होगा, जमीन पे तेरी रहेंगे, बात मेरी मानेंगे, खाएंगे तेरा, गाएंगे मेरा। ये सिलसिला पहले दिन से जब चैलेंज किया गया तो मालिक ने भी बड़े सादा लफ्जों में ये बात कह दी, बड़े यकीन और वसूख की बात है कि हां जो मेरे हैं उन पे तेरा दाव नहीं चलेगा। आज के इस मौजू ने हमें अपने आप को जज करने का मौका देना है कि हम किसके हैं, हम किसके दाई हैं, हमारा दावा किसके साथ मुताल्लिक होने का है और हम किसके इशारों पे चल रहे हैं, हम जुड़े किससे हैं, हम मोरे किसके बन रहे हैं, हम जो है नाम किसका लेते हैं, काम किसका करते हैं, हमारी गुफ्तार में कौन है, हमारे किरदार में कौन है, हमारे कौल में किसका बोल है और हमारे अमल में कौन तुलता है। ये इंशाअल्लाह आज का मौजू नखेड़ा करेगा, लेकिन इसके लिए ये बात बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज उसका फायदा भी है, नुकसान भी है, ना कोई चीज मुकम्मल निकम्मी है और ना जो है 100% कोई उसमें कोई ना कोई चीज किसी के लिए, हमारे लिए एक चीज में फायदे ही फायदे हैं, उसी चीज में दूसरे के लिए नुकसान भी हैं। तो इन चीजों दोनों को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। जो पॉजिटिव हैं
उनमें अपने आप को बहुत आगे ले जाना है, और जो नेगेटिव पहलू हैं उसमें अपने आप को रोकना है, हुदूद और कुयूद का ख्याल रखते हुए। तो हजरात, इस चीज को लेते हुए मैं मुआशरे की तरफ बढ़ता हूं। दुनिया का कोई भी मुआशरा पहले दिन से लेके आज के इस दिन तलक और क़यामत की दीवारों तलक, आप दुनिया के सारे उलूम सामने रख के उसको चेक करें, जज करें, वो 5 चीजों के बगैर अधूरा है। और अगर उसमें 5 चीजें आप पैदा कर देते हैं तो वो दुनिया का एक बेहतरीन मुआशरा बन करके, मिसाली मुआशरा बन के सामने आता है। कोई भी मुआशरा दीन के बगैर, शरीयत के बगैर और रूहानियत के बगैर चलता ही नहीं है। और ये तसव्वुर बेशक दीनदार तबका हो या बेदीन हो, हर दौर में पाया गया है। दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं कि जहां किसी न किसी शक्ल में कोई न कोई इबादत गाह जो है वो मौजूद ना हो। और ये तसव्वुर हत्ता के दहरिये तलक भी जब तकलीफ में होता है तो उसकी जुबान पे कुछ ना कुछ आता है। ये चीज इस बात की दलील है कि मुआशरे के अंदर एक जरूरत है, और वो जरूरत दीन की है। ये दीन की जरूरत या तो खालिस शरीयत इस्लामिया से पूरी कर दी जाए, नहीं तो इस शरीयत के नाम के ऊपर इस रास्ते में शैतान बैठेगा। रहमान की शरीयत नहीं तो शैतान जो है अपनी तशर्रो लेकर के दुनिया के सामने आएगा, और यकीनन वो 2 नंबरी होगी, उसमें उनका फायदा नहीं होगा। दूसरे नंबर पे हजरत इंसान है, इसकी जान का मसला है। मुआशरे के अंदर अगर इसकी जान महफूज है, इसकी जान महफूज है, इसका बदन महफूज है, इसका जिस्म और इसकी रूह आपस में जो इसका ताल्लुक और चलती हुई सांसें, इनको अलग नहीं किया जाता, मुआशरा अच्छा है। लेकिन अगर रूह और बदन में, सांस और उसके वजूद में इसको जो है काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो ये मुआशरे के इस्तिराब की अलामत है। ये मुआशरा कामयाब होने वाला नहीं। आप उसको छुरी से काटें, उसको चाकू खंजर या तलवार से काटें, तीर या नेजे किसी और औजार से काटें, आप उसको गन पॉइंट पे या किसी भी पहलू से केमिकल से लेकर के आएं, ये मुआशरा मुस्तरब होगा, वो कामयाब मुआशरा नहीं होगा। तीसरे नंबर के ऊपर, हर इंसान का माल, उसकी दौलत अगर ये सेफ है, उसकी जेब में है, महफूज है, किसी की उंगली नहीं उठी, मुआशरा अच्छा है और तरक्की करेगा। लेकिन अगर माल चोरी में, डाके में, गलत तरीकों से हथियाने में, एक दूसरे से छीनने और खाने में कौम लग जाएगी और उसके लिए वसाइल मुहैया कर दिए जाएंगे, वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं, नाकाम होगा। और चौथे नंबर पर, किसी भी मुआशरे की इज्जत, जो उसकी इज्जत की अलामत है, आबरू है, उसका वकार है, और उसके वकार का मयार इंसान के 2 टांगों के दरमियान वाला मुआमला, जिसकी जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझको दे देता है अपनी जुबान की शर्मगाह की, मैं उसे दुनिया भी जन्नत कहता हूं कि ये भी उसके लिए जन्नत नुमा, और अगली जन्नत की जमानत तो है ही। इसके साथ साथ जो कौम अपनी शर्मगाहों को कंट्रोल कर लेती है और शर्म की हुदूद व कुयूद में ले आती है, उसकी नस्ल, उसकी नई जनरेशन, उसकी अगली झील, उसकी नर्सरी, उसकी नई पौध भी बिल्कुल साफ सुथरी, पाकीज़ा, खालिस निकलती है, हलाली होती है। लेकिन जो अपनी इज्जत, आबरू और शर्म को नीलाम कर दे, फिर उसकी नस्ल भी महफूज नहीं, जिसकी नस्ल महफूज नहीं उसकी असल महफूज नहीं, जिसकी असल सेफ नहीं रहती उसका बचता ही कुछ नहीं। ये मुआशरा है इख्तिसार के साथ। और उसके बाद अब हम बढ़ते हैं कि ये मोबाइल है, ये इंटरनेट है, ये मीडिया है। भाइयों, एक ही लफ्ज ले लें, मीडिया इस वक्त हमारे सामने कई रंगों में मौजूद है। पहला उसका रंग, जिसको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। आपके सामने कोई किताब है, कोई डाइजेस्ट है, कोई नावल है, कोई मैगजीन है, कोई अखबार है, सफ़े पे लिखी हुई कोई तहरीर है, कोई छोटा सा जुमला है, कोई कलमा और लफ्ज है। ये इस कायनात के लिए जिसको हम प्रिंटेड मीडिया बोलते हैं, यारो याद रहे, ये हकीर नहीं है। अगर ये मुस्बत हो तो इस जैसी जबरदस्त चीज कोई नहीं, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इस जैसी नंगी शमशीर कोई नहीं। कहने वाले ने कहा था, चोट लगने के लिए डांग सोटा नहीं,
नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। और जब चोट लगे, चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। ये नरम लफ्जों की चोट पत्थरों को भी रुला देती है, और ये कोई मामूली चीज नहीं है। इस प्रिंट मीडिया के साथ हमारे सामने जो मीडिया अपने और नए रूप में आया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसके अंदर हमारे पास कभी वो टीवी की शक्ल में, कभी हमारे सामने कंप्यूटर की शक्ल में, डीवीडीज और सीडीज की शक्ल में, कभी वो फिल्म बन करके, कभी वो ड्रामा और मूवीज बन करके, यानी मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं उनको सूरत और तस्वीर उसके साथ चला करके इंसान के जज्बात को तस्वीर के ऊपर दिखा करके, ये इंसान अगर सिर्फ खामोश और प्रिंटेड तस्वीर हो, वही मुस्बत भी होती है, मनफी भी होती है, असरात रखती है, लेकिन जब वो हरकात और सकनात करने लगे तो अपने जज्बात और दूसरों के जज्बात के साथ कैसे खेलती है, ये मैं और आप देखते हैं कि जब कोई सीन देखा जाता है, इंसान उसके साथ रो भी देता है, मुस्करा भी देता है, कहके भी लगाता है, उससे खुश भी होता है, नाराज भी होता है, बिफर भी जाता है, सुकून में भी आ जाता है। तो ये अपने दोनों पहलू लेकर के दो धारी तलवार बन के हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मौजूद है। इसी तरीके से इससे पहले ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जो कि रेडियो की शक्ल में बेशक हमारे यहां कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। याद रहे अफ्रीका का और 7 बर्रे आज़मों का एक काफी सारा हिस्सा है कि जो आज भी सिर्फ और सिर्फ जंगलों में, देहातों में, वीरानों में, सहराओं में, दूर दूर की जगहों पर सिर्फ रेडियो के ऊपर ही अपना एतमाद करता है। उसी के साथ उनकी खबरें हैं, उसी के साथ उनकी खुशियां हैं, उसी के साथ उनकी गमियां हैं, उसी के साथ उनकी आयाद और ईदें हैं, उसी के साथ उनकी इबादात हैं, उसी के साथ उनकी रिवायात मुतल्लिका हैं। जो वो काशन दे रहा होता है वो लिया जा रहा होता है, मुस्बत है तो मुस्बत, मनफी है तो मनफी। इसी तरीके से उसके बाद जो हमारे पास एक अपनी बहुत ही तेजी के साथ फैलाव लेकर के आया और पूरी दुनिया को एक विलेज, एक बस्ती, एक देहात, बल्कि यूं कहिए कि एक फुटबॉल बना करके रख गया, वो नेट है जिसके बारे में आप अभी सुन रहे और उस पे बैठे सैकड़ों अफराद आपको यहां पर लाइव सुन रहे हैं। हमारे मशरक साइड पे रोशनी की तेजी है, सूरज की धूप हमसे कहीं ज्यादा है, और हमारी मगरबी साइड पे अभी जो है शायद अंधेरे ही अंधेरे हैं। इन दोनों सूरतों में, रोशनी में भी, अंधेरे में भी, दिन में भी, रात में भी, इसका फैलाव जो है चारों तरफ एक देहात, एक बस्ती, एक फुटबॉल की तरह इंसानियत को लेके, अफराद के मजमू को लेके उनके ऊपर अपना असर दिखा गया, जिसको आजकल साइबर मीडिया कहते हैं। ये इससे मेरी मुराद इंटरनेट है। ये वो जाल है, ये वो शबका है कि जिसको इंसान ने अपने मुखालिफ के लिए शिकार करने के लिए और उसको फंसाने के लिए बनाया। अब ये जाल किसके हाथ में है, उसके ऊपर गलबा किसका है, इसको कौन लेता है? जिसके हाथ में है, जो इसको जानता और पहचानता है, जिसके पास गलबा है, वही दूसरे पर जो है गालिब है। उसके लिए वो मुस्बत है, दूसरे के लिए मनफी है। इसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया है। अहबाब गिरामी, ये वाला मीडिया मेरे ख्याल में घर घर में चला गया और हाथ हाथ में चला गया, बल्कि एक जेब और पॉकेट में 2-2, 3-3 चले गए, जिसको हम मोबाइल कहते हैं। कि ये मशीनरी, ये एक छोटा सा हिस्सा और उसमें लगी हुई एक सिम और छोटा सा कार्ड, और उसके अंदर इंसान जहां कहीं भी है, एक गटर में बैठा और उतरा हुआ आदमी दूसरे साथ वाले गटर में मौजूद आदमी को फोन पे बतला रहा है कि मैं अपना काम इधर से कर चुका, ये हिस्सा खुल गया, तेरे वाला खुला कि नहीं खुला। ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके असरात हमारे सामने है, मख्फी नहीं है। लेकिन हमने आज जिस चीज को लेना है कि हमने इसके मुस्बत पहलू लिए या मनफी लिए। मुस्बत पहलू सबसे पहले मैं उसे जिक्र करूं, क्योंकि मुसलमान की नजर आफाकी होती है, आलमी होती है।
اور اس کی نظر میں نکمی نہیں کوئی چیز. قدرت کے کارخانے میں یہ حقیقت ہے، نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں. یہ حقیقت ہے کہ ہر بری چیز کے اندر، نقصان دہ چیز کے اندر بھی رب نے شاید فائدے رکھے، اور ہر فائدہ مند چیز جو ہے اس میں بسا اوقات نقصان کا پہلو بھی موجود. اگرچہ یہ قاعدہ کلیہ عمومی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر اکثر یہی چیز ہے. بھائیو، سب سے پہلے ہم موبائل کی بات کرتے ہیں. آئیے، الحمدللہ موبائل نے ہماری دوریاں ختم کر دی. اس نے ہماری مصروفیات کو محدود بھی کیا، زیادہ بھی کیا، اور اس نے ہمیں بیک وقت ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے وہ انفارمیشن دے دی کہ جس کے بارے میں جہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں ایک وقت لگتا تھا، ہفتے اور مہینے لگتے تھے. ایک ہی لمحے کے لیے آپ وہاں کچھ لکھتے ہیں اور وہ ایس ایم ایس کی شکل میں، ایم ایم ایس کی شکل میں، یا آپ کے کلپس کی شکل میں وہ کس طریقے سے ایک جگہ سے اڑتا اڑاتا لمحوں میں، شاید دنیا کی تیز ترین ٹریفک کوئی اور جو ہے وہاں نہ پہنچ سکتی، وہ ڈائریکٹ راستوں کو کاٹتی ہوئی، فصلوں کو چیرتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، اور جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا اسی طرح ہمارے لگے ہوئے ٹاوروں پہ ان لہروں کے ذریعے جا کر کے پورے بھرے گھر کے اندر میں 10-12 افراد کی موجودگی میں جس کو ہم نے نشانہ بنایا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، ہٹ کیا تھا، وہ عین جا کر کے اسی کے پاس، اسی کی جیب پاکٹ اور ہاتھ میں جا کر کے وہ خط جو ہے، وہ میسج، وہ خبر اور وہ ہماری بات، ہماری بیل اسی کو جا کر کے لگتی ہے. ہم الحمدللہ خوش ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے ذریعے مثبت کیا ہے بھائیو؟ یہاں میں نقطہ بتانا چاہتا ہوں. مسلمان کے نزدیک جو مثبت ہوگا، کافر کے نزدیک وہ منفی ہوگا. یہ بات یاد رکھنا. جس چیز کو ہم مثبت دیکھ رہے ہیں وہ اسے منفی دیکھے گا، اور جسے ہم منفی دیکھ رہے ہیں اس کو اس نے مثبت دیکھنا ہے. اب اس نے جسے مثبت سمجھا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیا وہ واقعی مثبت ہے. اگر وہ مثبت ہے، ہم صرف اس وجہ سے رد نہیں کریں گے کہ وہ کافر ہے اور اس کی سوچ ہے. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار مثبت چیزیں جو اس کفر کے معاشرے میں تھی ان کو برقرار بھی رکھا، جاری و ساری بھی رکھا، صرف اس لیے رد نہیں کر دیا کہ وہ اس میں کافروں کے پاس ہے. تو بھائیو، اس میں بڑے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فوائد رکھے، مجھے بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس میں دین کی جو ہے دعوت بھی ہے، اشاعت بھی ہے، پیغام بھی ہے، کتاب بھی موجود، سنت بھی موجود، اور الحمدللہ ہمارے روزمرہ کے مسائل، یہ سارا کچھ اس میں موجود. انٹرنیٹ کو لے لیں، یہ صرف منفی نہیں ہے. اس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے اس کے اندر فوائد بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کے جو فوائد ہیں وہ شاید تھوڑے اور اس کے نقصانات زیادہ، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اعلیٰ بذات خود جو ایسا ہے، بلکہ اس کے استعمال کرنے کی جو ریشو ہے یا اس سے واقفیت اور معرفت چونکہ وہ تھوڑی ہے. تو جب اسلحہ انسان کے ہاتھ میں ہو، اسے معرفت نہیں، تو وہ فائدہ مند ہونے کی بجائے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے. تو بھائیو، انٹرنیٹ کے فوائد ہمارے سامنے. آپ یہاں بیٹھ کر کے ایک بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. آپ ایک کلپ جو ہے اس کو یوٹیوب پہ اتارتے ہیں اور اس کو کسی بھی لمحے بغیر کسی رکاوٹ کے ٹی وی کے اندر اگر کوئی پروگرام جو ہے وہ نشر ہوتا ہے، اس لمحے آپ کو مل رہا ہے، یا جب ریپیٹ ہوگا تو پھر شاید ملے. اس کو آپ اپنی مرضی کے وقت میں فارغ ہو کر کے نہیں لے سکتے. لیکن اس انٹرنیٹ نے اس پہ مزید اضافہ کیا. آپ 24 گھنٹے کسی بھی لمحے اس کو اٹھائیں، جون سے مرضی حصے میں جائیں، اس کو دیکھیں، ایک بار دیکھیں، بار بار دیکھیں. یہ ساری چیزیں موجود. علم کو اٹھائیں، نالج کو لیں، لائبریریوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اور جو بھی اسلام کی شکل موجود ہے وہ آپ کو اس کے اوپر الحمدللہ ملے گی. خیر کی شکل میں، اچھائی کی شکل میں، اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے مقامات پر، اپنی اپنی ویب سائٹس پر. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کتنا کام ہوا اور کہاں تک لوگ پہنچے. یہ اس کے مثبت فوائد. اس کے بعد میڈیا ہے. بھائیو، میڈیا اس وقت جتنی بھی شکلوں میں ہے جن کے میں نے نام لیے، اس کا استعمال مثبت بھی ہے. اور میں سب سے پہلے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میری نظر میں کائنات کا سب سے مقدس ترین میڈیا وہ وہی ہے
जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी इल्हाम की शक्ल में, कभी जो है पैगाम की शक्ल में, कभी मैसेज की शक्ल में, कभी इल्का की शक्ल में, कभी जिब्रील आमीन को भेज करके, कभी किसी अंदाज में, कभी किसी अंदाज में अपने उस मैसेज और पैगाम को उम्मत मुहम्मदिया तक ही नहीं बल्कि इंसानियत तक पहुंचाया है। जिन्होंने ले लिया वो कामयाब हुए, जिन्होंने उस मीडिया को कबूल नहीं किया है वो नाकाम हुए और उन पे बुरे असरात ठहरे। ये तो इसके मुस्बत जिनको मैंने इशारा किया, और इसके अंदर एक लंबा टॉपिक है कि इस पे बात की जाए कि इसके फवायद क्या हैं, उसकी मिसालें दी जाएं। लेकिन हम इस वक्त बढ़ रहे हैं कि इन चीजों के इस बात के साथ साथ हमारा ज़ाये क्या हो रहा है, और वो ज्यादा है, और वो इस वक्त ज्यादा है। भाइयों, कैसे? मोबाइल को लीजिए। मोबाइल हमारी बुनियादी तौर पर जरूरत थी। दुश्मन ने इसको बनाया, उसने इसको इजाद जब देने की सोची तो शायद उसके पीछे सोच कुछ और थी कि इंसानों की जासूसी और जहां कहीं भी उनको ट्रेसना। आपको पता है कि ड्रोन हमला उस वक्त तक हमला नहीं होता जब तक वहां उस घर, उस जगह, उस मुकाम पे सिम नहीं पहुंचा दी जाती, और वो वहां जाकर के जिस तरह आपका मैसेज ठक वहां लगे और आपकी कॉल उसी नंबर पे जाके लगे। 10 आदमियों के बीच में 100 के झुरमट में 1000 के अंदर, जैसा कि आप देख रहे थे भरे हाल में अभी जो ये टून चली तो इसी जगह पर क्यों चली? जहां आकर के उसको गिरना है, गिराना है, हिट कर दिया जाता है। हजरात, बुनियादी तौर पे इसको लिया गया और हमने समझा हमारे फायदे में, और हमने काल की हद तलक, राब्ते की हद तलक, लेकिन दुश्मन इसको किस किस मानी में इस्तेमाल कर रहा था उसकी तरफ हमारी नजर नहीं गई। ब्लैकबेरी पूरी दुनिया के अंदर जो अपना कोहराम और अपनी शोहरत दे गया, लेकिन जब पता चला कि कोई भी काल, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो रिकॉर्ड नहीं हो रही, और ये हमारे आगे जब नेट की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे ये क्या करता है, www ये 3 बार ये क्या है, और उसके बाद .coms क्या है। ये सारी चीजें हमें इस बात की खबर देती हैं कि कान खड़े रहें, होश में रहिए, पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होकर के उसके सही मुस्बत पहलुओं को लेकर के दुनिया में किसी भी चीज के अंदर जहां शैतानी पहलू पाया जाएगा, याद रहे आप रहमान के नुमाइंदे हैं, शैतान के नहीं है। शैतान की नुमाइंदगी को रोकना होगा, रहमान की नुमाइंदगी को फैलाना होगा। ये जिम्मेदारी है जो अल्लाह ने हमारे कंधों पर डाली है। भाइयों, इसी मोबाइल ने जो हमसे छीना है, सबसे पहले हमारी इबादत गाहों का सुकून देख लो। वो बैतुल्लाह, वो अल्लाह का घर, वो मस्जिद नबवी और ये उम्मुल कुरा, वहां पर भी अगर देख लें, अल्लाह मुआफ करे, वो चीज के जो हमारी नजर में हराम थी, वो बातें जो कल तलक शायद मुस्लिम घरानों में नहीं चलती थी, लेकिन इस सोशल मीडिया की वजह से उसके जो असरात मुरत्तब हुए, आप गानों की ट्यून्स को ले लें, शायद अल्लाह के घरों में कल तलक ये मुमकिन नहीं था, लेकिन आज मसाजिद में, आज इंस्टीट्यूट्स में, अल्लाह के घरों में, हत्ता कि उसकी आखिरी इंतहाई शक्ल बैतुल्लाह के अंदर भी अगर आप देख लें, हमको अल्लाह मुआफ करे हमने किस अंदाज में उसको ले लिया। और उसके ऊपर मजीद वो फतवा कि किताबुल्लाह की, आयातुल्लाह की जो है वो उसको ट्यून बनाना उसको मुनासिब नहीं समझा गया। अगर वो नहीं तो फिर बंदा करे तो क्या करे। हजरात, एक सादा सी मिसाल है, फिर इसको दिया गया कैमरे से, उस वक्त मुज़य्यन कर दिया गया। इब्तिदा में कल तलक जिन लोगों के नजदीक शायद तस्वीर हुर्मत के पहलू में, इंजॉयमेंट और आम बगैर किसी जरूरत जो है इस्तिरारी के उसको लेना गलत था और मुनासिब नहीं था, वो भी इसमें आम रूटीन में हो गए और बहती गंगा में सब हाथ धोने लगे। हजरात, दुश्मन का हमला, सकाफती जंग, तहजीबों की जंग, तमद्दुन की जंग और अपने जो आसार हैं उनको गालिब करने की जंग, अपनी तालीमात को ऊपर लाने की और इस्लाम की तालीमात को दबाने की जंग, यकीनन इस मोबाइल के अंदर मजमूई तौर पे अगर हम गौर करें, हमने इसको इशरत का सामान समझा, हमने इसको जरूरत से निकाल करके इंजॉयमेंट में लेकर के आ गए। और जब हम इस मरहले में आए, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, ये हमसे क्या छीन के ले गया। मुआशरे में सबसे पहले हमारे दीन के काफी सारे पहलू कमजोर करके रख
गया, ज़ईफ अहदीस चली इस पे, कुरान की आयात को तोड़ मरोड़ के चलाया गया इसके ऊपर। हजरात क्या कहूं, हद्दिस वला हरज, बहुत कुछ हुआ। अगर इसको जान के पहलू से देखें तो इस मोबाइल ने हमारी जानू को जहां सेफ किया वहां जानू को बहुत ज्यादा खतरा भी दे दिया। एक राब्ते में है हमारे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर इल्ताफ रहमान कमर, ये जनाजे में शरीक होते हैं अपने 4 साथियों के साथ, गाड़ी में हैं, गाड़ी जनाजगाह की तरफ बढ़ रही है, मिनट मिनट पे जो है दुश्मनों का राबता है और शायद ये बेखबर हैं, अल्लाह अली में खबीर जो है वो उसके अपने मुआमले हैं। आयन जब जनाजा पढ़ने के बाद गाड़ी बाहर निकलती है, फोन पे खबर और मिनट मिनट की इत्तला है, अब निकल आए हैं, कब्रिस्तान की दीवार के पास हैं, अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, उसी वक्त जो है फैरंग खुलती है और ये लोग जो है अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। हजरात इसने जाने किस तरीके से ले ली, ये दिन रात इसके ऊपर हमारे जो है ये क्राइम्स रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम आंखों से देख रहे हैं। और मोबाइल का जो इस्तेमाल है, जो अल्लाह ने हमारे लिए एक मुस्बत पहलू एक मोमिन को दिए थे कि उसकी सोच मुस्बत, उसके हाथ मुस्बत, उसके कदम मुस्बत, उसके कौल में इस बात होता है और उसकी गुफ्तार और किरदार में इस बात होता है, वो मनफी चीजों को निकाल देता है। लेकिन ये मुसलमान, वही मुसलमान के पानी में मक्खी गिरे तो उसको डिबो करके गिरा कर उसको बाहर निकाल दे, लेकिन ये मुसलमान शायद आज मोबाइल के हवाले से इस पहलू को नहीं देख रहा। इसकी जान के बाद इसके माल के ऊपर जो डाके मोबाइल के जरिए डल रहे हैं, उसकी एक अदना सी मिसाल, एक आदमी ने जो जायज बैलेंस करवाया है उसको गलत तरीकों से हथियाने से लेकर के बड़े बड़े फराडों तक जो इस मुआशरे में मोबाइल के जरिए हुए हमारे सामने मौजूद हैं। और इसी तरीके से इज्जत को ले लें भाइयों, मैं इस हाल में इस रमजानुल मुबारक की 27वीं तारीख को रब को शायद समझ के गवाह बना करके कह रहा हूं और आप भी मेरे गवाह होंगे, इससे पहले शायद इज्जतों की नीलामी इतनी नहीं हुई थी जितनी सोशल मीडिया और मोबाइल ने हमारी इज्जतों को दांव पर लगा दिया। आज का नौजवान, आज का बेटा, हमारी बेटियां कल तलक जिनके हाथ में किताबुल्लाह, जिनके हाथ में सुन्नत रसूलुल्लाह, जिनकी जुबानों पे अल्लाह के कुरान की तिलावतें और जिनकी गुनगुनाहट के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र और विर्द होते थे, अल्लाह की कसम आज हालत यह है कि वो अपने क्लास रूम्स में बैठ के, वो अपने बेडरूम्स में रह करके, वो माँ बाप के अंदर मौजूद होकर के भी वहां मौजूद नहीं होते। उस्ताजों के सामने रह के उनका वजूद तो है लेकिन उनके ज़हन नहीं है। और इससे भी हमारी गिरावट क्या होगी और इस सोशल मीडिया का हमारे ऊपर गलत असर क्या होगा कि वो वाशरूम जो एक जरूरत के लिए था, हमने उसको भी इस बुरे असर से बचा के नहीं रखा। कौन कंट्रोल करेगा? मुसलमान तो बड़ी हुदूद और क़ुयूद का पाबंद होता है। ये तो वो इंसान था, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज कान में पड़ी, पैगाम आया और कहा गया इजलिसु, बैठ जाइए। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक कदम दर के बाहर है, एक अंदर है। जब आका का हुक्म सुन लिया, रब का पैगाम सुन लिया, मालिक की शरीयत सुन ली, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का जुमला कानून से निकला। क्या होता है? अंदर वाला कदम बाहर नहीं करते, बाहर वाला अंदर नहीं करते, नीचे ये नहीं देखते जूते हैं क्या है, बैठ जाते हैं। पूछने वालों ने पूछा तो कहा जब महबूब का हुक्म आ गया तो उसके बाद आगे बढ़ जाऊं, पीछे हट जाऊं, मुनासिब ही नहीं। लेकिन ये मुसलमान, उसका बेटा और उसकी बेटी, ये हमारी नई झील और उसमें हम भी शरीक हैं। भाइयों, हमने हमेशा दूसरों को बुरा कहा। अपनी यूनिवर्सिटियों को देख लीजिए, अपने कॉलेजों को देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, और ये चिंगची और इन भूंड रिक्शों में बैठे हुए जो है मट्टी उड़ रही होगी, हमें जंप लग रहे होंगे, लेकिन यकीन कीजिए हमारे हाथ में है, हमारी नजरें वहीं पर हैं, हमारे कानों के साथ है। जो तबाही और बर्बादी इज्जत के हवाले से कल तक सोची नहीं जा सकती थी, उसको इतना आसान कर दिया गया, इजी अप्रोच कर दिया गया कि अल्लाह हमें मुआफ करे, अल्लाह हमें मुआफ करे। शायद कल एक पैगाम देते हुए कई हफ्ते, कई महीने बीत जाते थे, कई रुकावटें आती थी,
लेकिन आज बगैर किसी विचोले के, बगैर किसी थर्ड पर्सन के, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मुमानत के, दीवारों के ऊंचे होने के बावजूद और चारों तरफ जंगला लगे होने के बावजूद और उस पे जो है गेट के ऊपर बड़े बड़े गेट कीपर्स और हमारे गनमैन होने के बावजूद, बाप जैसे मुहाफिज के बावजूद, भाई जैसे ख्याल रखने के बावजूद, हजरात हत्ता कि मैं ये कह दूं कि शादीशुदा औरत के शौहर के उसके पास होने के बावजूद, एक ही बेड के ऊपर लेटने के बावजूद, अल्लाह की कसम उसकी बीवी तक अप्रोच जो है कितनी आसान हो गई है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन कर रहा है? मुसलमान। अभी मैं किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, ये मुसलमान के साथ एक जरिए को जो अल्लाह ने उसमें मुस्बत भी रखा था, उसमें एक मनफी पहलू भी मौजूद था, उसने मनफी पहलुओं को किस तरह उजागर कर दिया। हद्दिस वाला हरज, कोई हरज की बात नहीं, जितना मर्जी बयान कर दीजिए। हजरात गिरामी, बात आगे बढ़ती है, हम इसी तरीके से इशारे करके आगे निकलते हैं। आप इसके साथ इज्जत को रो रहे थे, इज्जत के साथ हमारी नस्ल कहां तक चली गई। शायद मोबाइल से पहले ड्रमों के अंदर इतने बच्चे नहीं मिलते थे जितने मोबाइल की आमद के बाद मिले। ईदी के झूले की रेशो जाकर के देखिए, मोबाइल से पहले इतनी नहीं थी जितनी कि उसके बाद बढ़ गई। जिना के केस जितने इंदिराज हुए और हमारी नस्ल जिस तरह बर्बाद हुई और उस नस्ब नामे के अंदर जिस तरह मिलावटें हुई और जो कुछ हुआ, ये शायद इसके नेगेटिव पहलूज में है। हजरात, मुआशरा इन 6 चीजों के हवाले से इस वक्त किस तरीके से बज़ाहिर देखने में बड़ा तरक्की याफ्ता, लेकिन अंदर से उसको किस तरह घुन खा गया है। इससे बढ़कर के दुख की बात क्या होगी कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को लेकर के निकले और कहे कि चल आ, मैं आज आपको अपनी महबूबा, अपनी माशूका से मिलवाता हूं। बड़ी सुंदर, बड़ी जबरदस्त, बड़ी साहिबाई जमाल, बड़ी जो है फत्ताना, बड़ी ये बड़ी वो, जब लेकर के पहुंचता है, अल्लाह अकबर, देखते ही दूसरा उसका दोस्त वहां से भाग निकलता है। उसको बाद में पूछता है कि यार तू बड़ा जो है रेस हो गया और तू हसद में और चला गया, तुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसने कहा कि अपनी जुबान को संभाल, अपने आप को कंट्रोल कर, वो मेरी बहन है। ये सीन भी दुनिया को देखने में। और हजरात, क्या ये कैफियतें नहीं हुई? आए आगे बढ़िए इंटरनेट की तरफ, इसके अंदर बड़े बड़े फवायद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो इस्तेमाल करने की हद तक मैं इसका मुकम्मल तौर पे इनकारी नहीं, लेकिन पूरा अगर ईमान नहीं है तो आप इसको हाथ लगाएं, ये आपके हाथों को नहीं सिर्फ जलाएगा, ईमान को भी जला के रखेगा। ये वो चीज है, मुस्बत भी है, मनफी भी है। आप कुरान मजीद की तिलावत सुनने बड़े मुखलिस होकर, खालिस होकर के निकले हैं, लेकिन अगर इस्तिकामत नहीं है, नजर को जो है वो कंट्रोल नहीं है और अपने वजूद और ज़मीर और उसके खमीर को सही लगामे नहीं है, तो आप यकीन कीजिए कुरान मजीद की तिलावत सुनते सुनते दुश्मन ने उसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया, ऐसा क्लिप छोड़ा जाएगा, ऐसी तस्वीर दी जाएगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स रख दी जाएंगी कि जो एक बच्चे को, एक नौजवान को, एक आलिम को, एक दाई को, एक मुबल्लिग को वो खुद अट्रैक्ट कर रही होंगी कि ये भी देख लो क्या है। बस वो जब उस पे क्लिक हुआ नहीं तो पता नहीं क्या का क्या होगा। मैं शायद ये बात न कहता जब मैंने यहां से भाई से alkarimia.com का एड्रेस लिया और लेकर के जाके अगले दिन जो है अहले खाना को और बाकी लोगों को बताया कि आप ये लें और उस पे जो है देखें, बैठा करें सुबह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, मैं इस कहने में मुझे कोई बात नहीं है, हकीकत यह है, बेबाकी से कह रहा हूं कि अभी www.alkarimia ये .com डाला ही था और उसको अभी एंटर भी नहीं किया है। आप यकीन कीजिए वो साइट खुली कि देख करके शर्में भी, वो नजरें भी शर्मा गई और झुक गई, और उस वक्त बच्चों की नजरें भी झुकी। वजह क्या थी कि दुश्मन ने हमारे साथ इस तरीके से चालाकियां खेली। आप किसी गलत जगह पे जाए, कभी कुरान की शायद साइट ना खुले, कोई और चीज ना खुले, लेकिन इस जहान के अंदर रहते हुए मैं इनकारी नहीं हूं। मत समझिएगा कि मैं इन चीजों का टोटल मुखालिफ, क्योंकि मैं आज सूरत उश-शम्स अपने सामने रखता हूं। आखिर में उसको जिक्र करूंगा। भाइयों, नेट के अंदर जो जो कुछ हुआ, उसके अंदर दीन को देखें, कुरान बदल करके रख दिया गया। नेट के अंदर जो हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहादीस
उसके अल्फाज बदले गए, कलमे बदले गए, जुमले बदले गए, उन पे हुक्म बदले गए, मार्केट में लॉन्च कर दिया गया, दुनिया की हर खराफात जो है उस पे ला करके रख दी गई, उसको दीन का नाम दे दिया गया और मुकाबले की जंग है। कहीं यहूदियत, कहीं मजूसियत, कहीं ईसाईयत, कहीं नसरानियत, कहीं लादीनियत, कहीं हिंदू मत, कहीं बुद्ध मत, कहीं सिख मत। हजरात, जो कुछ दुनिया के अंदर गलत और सही था वो मौजूद मिलेगा। ये अब इस्लाम और उसमें पूरे दाखिले की यकीन दहानी के साथ ही बंदा आगे बढ़े, नहीं तो कदम कदम पे खुतवात शैतान पड़े हैं जो इंसान को फिसलाने के लिए और बहलाने के लिए, रस्ते सिरात मुस्तकीम से हटाने के लिए मकर और फरेब का जाल ये इंटरनेट बिछा हुआ है। और पंछी जो है दाना समझ रहा है कि इसमें मेरे लिए खैर है, मेरा पेट भरेगा, लेकिन वही दाना उसकी मौत का सबब बन जाता है। हजरात, ये नेट जब भी घर में आया, इस नाम पे आया, इंफॉर्मेशन मिलेगी, खबरें मिलेगी, दुनिया की इत्तला होगी, लेकिन उमूमन जो है देखने में ये आया, एक सर्वे के मुताबिक 85% लोग वो निकले कि जो इसको अच्छे नाम पे लेकर के आए, लेकिन इस्तेमाल बुरा हो गया। कंप्यूटर जिसे उलमा की सीडीज और डीवीडीज के लिए खरीदा गया था, जब हमारा होल्ड ना रहा, कंट्रोल ना रहा, नतीजा ये निकला कि वहां पर और बहुत कुछ आया। हदीस वाला हरज, जुबान शर्माती है, बयान किया जा सकता है। हजरात, अगर नुकसानात हैं, बात को आगे बढ़ा लेते हैं, इस चीज को लेकर के चलते हैं। इंटरनेट की अगर जान के हवाले से देखें तो तब भी, ईमान के हवाले से देखें, नुकसानात को देखें तो तब भी, माल और दौलत के हवाले से देखें तो तब भी, और उसके बाद इज्जत के हवाले से। क्या इसी नेट ने ये करिश्मे नहीं दिखाए कि बाप बेटी को फंसा के बैठा हुआ है, बाप भी जाली और बेटी भी जाली, नाम और फर्जी शक्लों से, भाई बहन को फंसा के बैठा है, और मामू अपनी भांजी के साथ है। हजरात, जहां इसने ये किया और हमने मिसालें दी कि जनाब इंग्लैंड की एक गोरी जो है वो गैर मुसलमान थी, दावत दी गई, परीच किया गया, उस तक पैगाम पहुंचाया गया, और उसका नतीजा ये निकला, वो कलमा पढ़ते हुए लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी और सामने से नौजवान ने इस्तकबाल किया, वो हमेशा की यहीं होकर के रह गई, मुसलमान हो गई। हजरात, ये तो ठीक है जब उसका मुस्बत इस्तेमाल था, लेकिन उसके मनफी पहलू को भी मत भूलिए कि उसका नुकसान कितना बड़ा है और गालिब है। आज हम नेट बीतियों के ऊपर अखबारात में इसकी लंबी कहानियां, स्टोरियां पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। महल्लों के अंदर, कैफों के अंदर, जगह जगह पे, घर घर में, जहां जहां फोन, जहां जहां तार, जहां जहां वायर, बल्कि इनके बगैर भी जो जो हमारे पास इस वक्त सिस्टम मौजूद है, उनके अंदर देख लीजिए क्या उसने हमारे हशर किया है, क्या हालत की है, और किस तरह इंसान को नंगा कर दिया है। आपको इल्म भी नहीं, आपको खबर भी नहीं, मुझे पता नहीं, इंसान लाइल्मी में है कि उसका जो है क्लिप तैयार कर लिया जाता है और उसको उठा करके जो है वहां पे डाल दिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर वो इंसान तमाशा बन जाता है। उसकी इज्जत, उसका एहतराम, इस्लाम की हुदूद और कुयूद, वो मुसलमान के जिसकी इज्जत बैतुल्लाह से भी अल्लाह के यहां बढ़ करके थी, उसकी इज्जत सेफ नहीं रही, उसकी आबरू सेफ नहीं रही, उसका घर और उसके हराम रिश्ते जो हैं वो सेफ नहीं रहे, मजाक बन करके रह गया यारों में, दोस्तों में। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान जो किसी भी चीज का मुस्बत इस्तेमाल करता था, आज उसके हाथों से उसके नेगेटिव पहलू ज्यादा आ रहे हैं। जो हमें कहना है, जो पैगाम देना है, अपने मीडिया को देख लें भाइयों। ये मीडिया, काश इस मीडिया के ऊपर ये होता, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ऊपर मक्के में होने वाली दहशतगर्दी दिखाई जाती। काश मुसलमान, गैर मुस्लिम की तो बात अलग है, अपने मुसलमान मुल्क के अंदर ये जितने चैनल चल रहे हैं, गैरों के तो जो थे ही थे, जो अपनों के थे, उसके ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके ऊपर उठने वाली मुशक्कतें, आने वाली मुसीबतें, आने वाले दुख, पेश आने वाली रुकावटें वो दिखाई जाती। आपका अज़म दिखाया जाता, आपके साथियों का इस्तिकलाल दिखाया जाता, वो सब कुछ पेश किया जाता। लेकिन अफसोस कि इस मीडिया ने अगर तरजीह दी है, जहां दो चार इस्लामी प्रोग्राम्स रखे, वहां उसके साथ सैकड़ों पता नहीं क्या कुछ हमें दिया, सेकुलरिज्म को उजागर किया, वहां पर जो है उन चीजों को लेकर के आया कि जिसमें इल्हाद है, इस्लाम दुश्मनी है, और इस्लाम के नाम के ऊपर जो है शुगर कोटेड करके जहर की गोलियां, शिरक की गोलियां और बिदअत और खराफात ये दुनिया के अंदर उसको डाला जा रहा है और उनकी घुट्टी में लाया जा रहा है। हजरात, मैं इस बात को फिर वापस नेट की तरफ लेके आता हूं, ईमानियात ने इससे बड़ी चोट क्या खाई होगी।
یہ نیٹ شاید میں اس پہ کبھی بیٹھا کرتا تھا، میرے نہ بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، شاید میں نے اسی حال میں کہا تھا، لوگوں جب ہم اس کے مثبت استعمال سے پیچھے رہے، فتووں کی حد تلک رہے اور حرام کی زد تلک رہے، اس دشمن نے اس حرام چیز، اس نے دیکھا یہ کس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کس میں 20 40 50 سال فتووں کی زد تک رہیں گے، اس نے اس کو استعمال کر کے ہمارا کچھ نہیں رہنے دیا، اور ہم جو ہے کل تلک ہماری آواز شاید دبنے والی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرات صرف اپنی کائنات کی محبوب ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان ظالموں کے ہاتھوں، ہم صرف ظالم کہہ سکتے ہیں لیکن اس ظلم میں شاید ہم بھی شریک ہیں۔ کاش ہم نے اس کو شروع سے دیکھا ہوتا، دشمن کی چالوں کو جانا ہوتا، اس کو پہچانا ہوتا، اس کے سامنے باندھے ہوتے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوتی، پنجوں میں پنجے ڈالے ہوتے، آج یہ دن نہ ہوتا کہ معاذ اللہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جعلی اور فرضی چہرہ بنا کر کے اس کو سور اور خنزیر کی دوبر میں ڈال دیا گیا ہوتا۔ اور پھر ہم نے شور ڈالا اس کو بند کر دیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے۔ بھائیو، چیونٹیوں کی بل کے اوپر آپ لاکھ لیپ چڑھا لیں، اس سے اندر کا مواد ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ آپ صرف اس بات پر خوش ہوں گے، آپ کینسر کے پھوڑے کے اوپر لاکھ پٹیاں باندھ دیں، اگر اس کی جڑیں ختم نہیں ہوتی ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ حضرات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور استغفر اللہ نعوذ باللہ کہہ کے ہم پیچھے ہٹ گئے، لیکن میدان میں جب نہیں اترے، وہ ڈبے، وہ حصے جو خالی تھے، جو فل کیے جا سکتے تھے، مواد دیا جا سکتا تھا، لٹریچر رکھا جا سکتا تھا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات کو، ایمانیات کو، اسلامیات کو، آپ کی تربیت کو اور عمدہ پہلو سامنے لائے اور رکھے جا سکتے تھے۔ وہاں پر جب ہم نے اس جگہ کو خالی چھوڑا، خلا تو کسی نے پر کرنا تھا، معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھ بنا کر کے پیش کیا گیا، بڑی بڑی مونچھیں دکھائی گئی، اوپر پگڑ رکھے گئے اور سر کے اوپر بم اور بارود باندھ کے دکھائے گئے، اور کہیں یہ ہے کہ ہاتھ میں جو ہے کاسا دکھایا گیا، اور جناب بلال حبشی کو جو ہے اوپر سے وائن اور وسکی اور شراب ڈالتے ہوئے دکھایا گیا، اور نشے کے دھت اس شکل کے اندر اوپر جو ہے چوکٹے میں معاذ اللہ یہ عبارت لکھی گئی۔ یہی نیٹ تھا، یہی جال تھا جو دشمن نے ہتھیار بنایا، اور ہمارے زخم نے زخموں پہ نمک بھی ڈالا، اوپر لکھا کوئی تیری چھوٹی بہن بھی ہے، شراب بھی ملے، کباب بھی ملے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کے کیا چھوڑا میرا اور آپ کا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے اندر جو نیچے احصائیہ دیا گیا، جو شماریات دی گئی اور جو سروے دیا گیا، کس نے کیا، کہاں سے آیا، کیسے ہوا، یہ وہ WW کہ آپ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، پاس ورڈ لگا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، رات کے اندھیروں میں ہے، کسی کو علم نہیں، لیکن دشمن نے پوری خبر رکھی، پوری انفارمیشن لی، بے شک جعلی ناموں اور فرضی ناموں سے بیٹھے تھے۔ جو ہی آپ کا یہ کمپیوٹر کھلا، آپ نیٹ سے کنیکٹ ہوئے، جب بھی کسی جگہ پہ گئے، WW نے پوری ورڈ سے لا کر کے اس شکنجے میں جہاں وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ گجرانوالا کے کس محلے کے، کس گلی کے، کس گھر کے، کس کمرے سے کون سا شخص جو ہے اس کو لے کر کے اس وقت کھول کے بیٹھا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کھولا ہے تو کیا کھولا ہے؟ حضرات احصائیہ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس کائنات کا سب سے بڑا شرابی، معاذ اللہ سب سے بڑا زانی، اور معاذ اللہ سب سے بڑا سیکس کا رسیا اور حرمت کے رشتوں کا خیال نہیں۔ اسے تو اپنے یاروں دوستوں کی بیٹیاں چاہیے تھی، ان کی عزتیں چاہیے تھی، اسے تو اپنے منہ بولے بیٹے کی جو ہے بیوی پہ بھی اس کی آنکھ تھی، اور اس کی امت کی نظر دیکھو، ہم تو اس کو حرام نہیں سمجھتے، حلال جانتے ہیں، وہ حرام سمجھ کر کے بھی سب سے زیادہ جس چیز کو وزٹ کیا گیا وہ گندی اور ننگی فلمیں تھی، جو ہمارے نزدیک حلال ہے، مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے۔ انہوں نے رمضان میں جو وزٹ کیا یا غیر رمضان میں، وہ سب سے زیادہ وہی تھی جو عادت ان کے پیغمبر کی تھی۔ بھائیو، اس کے بعد جینے کا کیا حق ہے؟ کیا ہم اب بھی منفی چلیں گے؟ ہم اب بھی نیگیٹو بڑھیں گے؟
اور नेगेटिविटीज की वजह से हम मुस्बत चीजों को छोड़ करके इसके अंदर खैर, इसके अंदर अच्छाई, इसके अंदर दावत, इसके अंदर पैगाम, इसके अंदर कुरान, इसके अंदर अहादीस, इसके अंदर रब के अहकाम, इसके अंदर अल्लाह की नवाही, इसके अंदर उम्मत मुसलमा की तारीख और हिस्ट्री, इसमें अंबिया किराम के तज़किरे, हजरात, इसमें औलियाउल्लाह की अजमतें, इसमें सुलहा की सलाहियतें, सब कुछ मौजूद था। लेकिन एक तबका इसलिए पीछे हट गया, माअज़ल्लाह बुरा है, और एक तबका उससे लगा भी तो उनकी कोई वैल्यू न रही, और जो लगे कसरत के साथ तो बुरा लेकर के। भाइयों आए, मैं दावत देना चाहता हूं दोनों हलकों को, जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या जो बिल्कुल नहीं कर रहे, सूरत शम्स को पढ़िए। वश्शम्सी वज़ुहाहा, अल्लाह ने कहा ये मुकाबले का रुझान, ये दुनिया मुकाबले में है। मैं आसमान के सूरज को गवाह बना करके कह रहा हूं, सूरज की रोशनी तो बराबर है, उसको कोई बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई अच्छे मकसद के लिए, तो क्या अब सूरज का इस्तेमाल हम छोड़ देंगे? उसकी किरणें, उसकी रोशनी लेनी छोड़ देंगे कि इससे यूरोप रोशनी लेता है, इसमें बुरे लोग जो हैं वो साहिल पे जाकर के सूरज की लाइटों में और उसकी किरणों में नंगे लेट जाते हैं। तो इसका माना यह है कि अब हम सूरज और सूरज की कुर्बत छोड़ दें और उसके मुस्बत और फायदे लेने छोड़ दें। वह शम्सी व ज़ुहाहा, उसकी सूरज और उसकी धूप और हिद्दत और शिद्दत के इनकारी हो जाएं। वल कमरी इज़ा तलाहा, लोगों चांद को लोगों ने मुस्बत भी इस्तेमाल किया है, मनफी भी इस्तेमाल किया है। अल्लाह की सरजमीन रब की देन है। यहाँ इस नेट के अंदर, अल्लाह के इस जाल के अंदर, इस आसमान और जमीन के शबकों के अंदर, यहाँ सब कुछ इंसानियत मौजूद है। अल्लाह ने शैतान को ये नहीं कहा अपने साथियों को ले और निकल जा, कहीं अलग थलग होकर के रह जा, बल्कि इसी जहान में, इसी जमीन के ऊपर, इन्हीं हवाओं में, इन्हीं फिजाओं में, इसी नीली छत के नीचे रख करके मुकाबले का रुझान पैदा कर दिया। कहा तू अपना काम कर, मेरे अपना काम करेंगे, तू अपनी ताकत लड़ा, हम अपनी तदबीरें चलाएंगे। वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। लोगों के बड़े बड़े मकर फराब जो हैं उनके जाल होंगे, हमारी भी तदबीर होगी। यकीनन अल्लाह की तदबीर को कामयाबी मिलनी है। हजरात, हमने उसको कामयाब करने के लिए क्या किया? आइए, कोई छोड़ के बैठ गया, जिसने पकड़ा तो बुराई को लेके चले। वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा, दिन की रोशनी में दुनिया क्या क्या नहीं कर रही, कितने गुनाह नहीं कर रही, कितने जुल्म ज़्यादतियां नहीं कर रही, जिना शराब हराम खोरी नहीं कर रही, तो क्या हम दिन का इस्तेमाल छोड़ देंगे कि ये दिन को दूसरे इस्तेमाल करते हैं? हम नहीं। हजरात, वल्लैली इज़ा यग़शाहा, रात के अंदर जुर्म अपनी इंतहाओं को, कुफर अपनी इंतहाओं पे, शिरक अपनी इंतहाओं पे, जिना अपने पूरे उरूज पर, बगावतें अपने जो है इंतहाओं पर, तो क्या हम रात में रहना छोड़ दें कि हम रात को इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसमें तो बड़े बड़े जुल्म होते हैं, पाप होते हैं, चोरियां होती हैं, डाके होते हैं, जिना होते हैं, जुर्म होते हैं, बड़े बड़ी लग़्ज़िशें होती हैं, पाप होते हैं। नहीं, रात का मुस्बत इस्तेमाल भी है। अगर कोई रात को डाके के लिए खड़ा है तो कोई रब के सामने अपने आप को तहज्जुद में भी खड़े करके क़ियाम भी कर रहा है। ये तो रात का इस्तेमाल है। कौन मुस्बत करता है, कौन मनफी करता है, किसके ये हक में जाती है, किसकी जो है ये मुखालफत में जाती है। अल्लाह ने रात को भी गवाह बना डाला। वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा, लोगों ऊपर को चलो, सैटेलाइट की तरफ चलो, फिजाओं में चलो, हवाओं में चलो, आसमानों में उड़ो, देखो इसके अंदर मुस्बत भी है, मनफी भी है। अगर इसको दुश्मन गलत इस्तेमाल करे, शैतान अपने जाल बिछाए, वो अपने शतूंगड़ू को छोड़े, वो खन्नासों को छोड़े, वो उसके अंदर जिन्नात लेकर के आए, वो दुनिया के टोटके और चूने लेकर के आए, तो क्या आप अल्लाह की इस फिजा को, आसमान को लेना छोड़ देंगे? ये वही आसमान है जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेराज भी मिला है। ये वही है जिससे काहिनों को दुख दुख भी मिलता है। वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा, लोगों जमीन के ऊपर कौन सा गुनाह है जो शैतान की दावत और उसकी पार्टी नहीं कर रही? तो क्या आप जमीन छोड़ के भाग जाएंगे कि यहाँ बुरे हैं, बुराई है? नहीं, इसी जमीन पे रह करके मुकाबला करना होगा, फेस करना होगा, नेगेटिव रेशो कम करनी होगी, पॉजिटिव को बढ़ाना होगा, मुस्बत को चलाना होगा। वल अर्दी वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा, लोगों तुम्हारा नफ्स शाहिद है, इसमें अच्छी भी सूझती हैं, इसमें बुरी भी सूझती हैं। एक घर के अंदर एक फर्द है, उसके नफ्स में बुराई बुराई आती है, उसके अंदर अच्छाई भी है, तो क्या बुराई
की वजह से आप कह देंगे कि ये मेरा बाप नहीं, ये मेरी माँ नहीं, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं, ये मेरा उस्ताद नहीं, ये मेरा मोहल्लेदार नहीं। वो बाप भी है, वो माँ भी है, वो रिश्ता बरकरार है, लेकिन आपने उसके नेगेटिव पहलू को खत्म करके मुस्बत पहलू को उजागर करना है। और यही दावत दीन है, यही अमल साले है, यही ईमान खालिस है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह वो जो जुमले बोले हैं, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, अपने मोबाइल को, अपने इंटरनेट को, मीडिया की तमाम वैरायटी को उसका तज़किया करके, उसको पाकीज़ा करके, उसमें से छांट करके, उम्दा को ले करके, बुरे को छोड़ करके उसमें बैठेंगे, कामयाबी हमारे लिए है। व कद खाब मन दस्साहा, नाकामी है उसके लिए कि जो मुस्बत चीजों को छोड़ के, मुफीद चीजों को छोड़ के नुकसानदेह चीजों की तरफ बढ़ा और उस दलदल में फंस गया। जो फंस गया वो मर गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इसके जितने फायदे हैं उम्मत मुसलमा को हिम्मत दे, ताकत दे, ऐसे अक्लमंद लोग दे, ऐसे ज़हीन होशियार नौजवान दे कि जो उसके और इसी तरह बुजुर्ग और बच्चों तक जो उसके मुस्बत पहलू को ले, इस्लाम में पूरे दाखिले के साथ शैतानी खुतवात से बचा करके चले, और फिर उसके नेगेटिव पहलू से बचने वाले और जितने उसके जो है नेगेटिव और मनफी असरात और पहलू हैं, अल्लाह उससे लोगों को भी बचाएं, खुद को भी बचाएं। उसके लिए हमारी मेहनत भी हो, तगो दो हो, सिर्फ फतवों की हद तलक नहीं बल्कि अमल की हद तलक मैदान में उतर के अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।